Hey everyone, welcome back to my channel. Today we're going to talk about Earth Rhythm के products. ये products बहुत टाइम से मेरे पास है. I think it's more than 8-9 months or maybe it's about an year since I have got them, but I couldn't get time to talk about this product. But today finally आज मैंने सोच लिया है कि आज मैं ये रिव्यू करके हटूंगी. तो यहाँ पे मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 products. Oh my god. We are going to talk about one by one about them. The very first one we have here is this oil control face wash. This got 2% of salicylic acid and 2% of succinic acid. Dermatologist formulation है, certified cruelty free brand है, 100% vegan है. Formulation of this one is very simple. On the top you will get some of the humectants like glycerin है, propanediol है, betaine है which is very soothing. कुछ mild surfactants are there. Then आपको salicylic acid and this succinic acid मिल रहा है. Last में preservative है and fragrance है. Actually इसका gel like ही है but it's a thick gel. थोड़ी सी क्वांटिटी की आपको नीड होती है. काफ़ी अच्छे से फोम अप होता है और काफ़ी अच्छे से आपको गुड क्लीन फील देता है. बट एज इट्स इन अ जेल फॉर्म सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से पहले अपने हाथ में फोम अप करें, उसके बाद अपने फेस पे अप्लाई करें. अदरवाइज आपको टेक्सचर का इशू हो सकता है इसके साथ. फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है बट इफ़ यू आर इनटू फ्रेग्रेंस फ्री स्किन केयर देन यू कैन अवॉइड इट. हैज सूटेड वेल एंड आई विल recommend this one. Second up we have this clear skin face mask with matcha green tea and salicylic acid. The formulation contain humectants like glycerin on the top of the ingredient list. You will get matcha green tea on the top, bilobac on the top, and some fatty alcohol, gum, sodium hyaluronate. Then we got glycol. We also have kaolin clay. We got coconut alkanes in this one, capric triglyceride which are moisturizing ingredients. We got salicylic acid 2% here and last में again एक glycol और vitamin E है. That is it. It is a fragrance free product but still इसमें से थोड़ा सा smell आता है. टेक्सचर इसका स्मूथ है, एप्लीकेशन बहुत स्मूथ है बट इट इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल टू पुट ऑन योर फेस बिकॉज इससे बहुत अजीब सी वियर्ड सी ऐसे मस्टर्ड ऑयल गंदी सी ऐसे स्मेल सी आई आई वॉज नॉट एबल टू यूज़ इट ऑन माई फेस. मैंने इसको अपने हस्बैंड को दिया था. ही इज़ द वन हु हैज़ ट्राइड इट बट उनको भी ये बहुत ज़्यादा से अमेजिंग नहीं लगा. So no, we are not very super impressed with this mask, so you can avoid it. Next up we have this matcha green tea cleansing balm. The very first ingredient we got in the formulation is olive fruit oil. We got some moisturizing ingredient. We also got shea butter in this formulation, fatty alcohol, sunflower seed oil, pomegranate seed oil, green tea leaf extract, vitamin E are there. इसका texture थोड़ा सा thick है, अच्छे से ये मेल्ट इन हो जाता है बट ओ माई गॉड द स्मेल ऑफ दिस वन इज सो बैड एंड ये इमल्सिफाई उतने अच्छे से नहीं हो पाता है. एंड मैंने सिर्फ इसको एक बार यूज़ किया था एंड इट हैज़ इरिटेटेड माई स्किन. मे बी बिकॉज इसके अंदर शिया बटर है और ये बहुत अच्छे से इमल्सिफाई नहीं हो पाया. दैट्स वाई इसने मेरी स्किन पे इरिटेशन दे दिया बट द स्मेल ऑफ दिस वन इज़ रियली पथेटिक. मैं इसको टॉलरेट नहीं कर पाई. लाइक सो इट्स सो बैड. So if your nose is not very sensitive then you can go for it but I am very disappointed with this one. Last green packaging is this Cica gel. It's their Centella Asiatica वाली healing gel. इसमें on the top Centella leaf है, licorice है, ginseng है, blueberry है, calendula है, अश्वगंधा का extract है, aloe vera juice है, glycerin है, glycol है. That is it. There is no color, no fragrance, nothing. Even the texture of this one is really nice. It has a very nice soothing aloe vera like texture जो काफ़ी अच्छे से soothing effects आपके face पे देता है. And I love the fact that इसके अंदर कोई भी गंदा fragrance नहीं है. It's completely fragrance free. कोई formulation का smell नहीं है. Nothing at all. And this has suited well on my skin. So mostly मैं इसको use करती हूँ while I'm shaving and after shave like 5 minute के mask की तरह I have used it and this has worked really well. As a moisturizer मैंने इसको नहीं apply किया है because I used to apply a thick layer and then मैं उसको wash कर देती थी after 5 minutes. As a moisturizer I think if you are a super oily skin then you can go for it but I think ये थोड़ा सा फिर stretchy feeling आपको देगा आपके face पे. It's not something कि आपको moisturizing सी layer आपको face पे फील होगी. नो बट इट्स अ ब्यूटीफुल जेल. इट्स अ ब्यूटीफुल सूदिंग एंड कामिंग जेल. यू कैन गो फॉर दिस वन. नेक्स्ट अप आई हैव दिस ब्राइटनिंग एंड एक्सफोलिएटिंग डिओड्रेंट. द इंग्रेडिएंट लिस्ट इज क्वाइट सिंपल. इसमें बंच ऑफ ह्यूमेक्टेंट्स, मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स,
कुछ एक इसके अंदर एक्सफोलिएटिंग इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, कुछ ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, लास्ट में फ्रेग्रेंस के अलावा और कुछ भी नहीं है। Now texture of this one is not like your regular underarm roll on, ये बिल्कुल एकदम लिप बाम जैसा है। So जब आप इसको अप्लाई करते हो ना तो ये टूट जाता है। एंड फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको अप्लाई किया था ना, मुझे बहुत अच्छे से ठंडा ठंडा फीलिंग आई थी और फ्रेग्रेंस भी इसकी बहुत अच्छी थी। आई एब्सोल्युटली लव इट, बट आफ्टर 2 to 3 आवर्स के बाद ही वो फ्रेग्रेंस वैनिश हो जाती है और वो अजीब सी स्मेल आपको आनी शुरू हो जाती है। बट सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट था इसके साथ इसको अप्लाई करना। लाइक एप्लीकेशन वॉज रियली रियली बैड। लाइक आप जैसे लगाते थे वो टूट जाता था, तो आपको बहुत थोड़ा सा लगा के देन आपको लगाना पड़ता था, फिर वो यहाँ वहाँ लग जाता था। सो इट्स अ वेरी मेसी प्रोसेस, दैट्स वाई आई कुडंट फिनिश इट ऑफ और आई कुडंट यूज़ इट दैट मच। लाइक ब्राइटनिंग तो मैं नहीं देख पाई इसके साथ, बट इफ़ यू आर ओके विद सच स्टिक्स, मेस ठीक है, बर्दाश्त कर सकते हो तो यू कैन गो फॉर दिस वन, बट it's not something which can replace my Nivea underarm roll-on, so definitely no. Next up I have this lash and brow growth serum. बहुत ज़्यादा होप से मैंने इसको लिया था बिकॉज इससे पहले मैंने ऑर्डिनरी वाली लैश सिरम यूज़ किया था, दैट वाज हेल एक्सपेंसिव। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर कोई इंडियन ब्रांड आया है इसके साथ तो व्हाई नॉट ट्राई इट आउट। इंग्रेडिएंट लिस्ट भी इसकी बहुत ज़्यादा से अमेजिंग नहीं है। इसके अंदर ऑन द टॉप ही गम है, फिर ग्लिसरीन है, उसके बाद एक एंटीऑक्सीडेंट डला हुआ है, इधर एक वुड एक्सट्रैक्ट डला हुआ है विच इज़ बेसिकली फॉर हाइड्रेशन एंड सूदिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। ग्लाइसिन है विच इज अमाइनो एसिड, जिंक क्लोराइड है विच हेल्प्स टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। वी हैव रेडेंसिल, अ की इंग्रेडिएंट विच इज नोन फॉर प्रोमोटिंग हेयर ग्रोथ, सो दिस इज द ओनली इंग्रेडिएंट विच विल वर्क, बट बहुत ज़्यादा नीचे जाके है तो आई डोंट नो कितना कॉन्सेंट्रेशन है। एलोवेरा है, प्रिजर्वेटिव है, ग्लाइकॉल है, दैट इज इट। हेयर ग्रोथ प्रमोटिंग का सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट इसके अंदर डला हुआ है। टेक्सचर ऑफ दिस वन इज रियली लाइट। आई लव द फैक्ट कि इट्स नॉट अ वेरी वेरी ऑयली टाइप ऑफ अ सिरम, बट द एप्लीकेटर ऑफ दिस वन इज रियली बैड। लाइक जब इसको अप्लाई करते हो ना तो ये चलता ही नहीं है, अच्छे से लगता नहीं है इससे। लाइक एप्लीकेशन इज वेरी डिफिकल्ट विद दिस वन। तो लाइक एक जगह पे अच्छे से दबा के इसको रख के एंड देन मुझे अपने हाथ से मसाज करनी पड़ती थी। दैट्स वाई इट वॉज वेरी वेरी टायरिंग प्रोसेस फॉर मी, बट एज सच मुझे कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं नज़र आया है इसके साथ। तो बट इफ़ यू वॉन्ट समथिंग जस्ट फॉर द मेंटेनेंस पर्पज तो यू कैन गो फॉर इट, बट वही है कि इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है अप्लाई करना। लाइक अच्छे से लगता नहीं है, जो ब्रिसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे स्मूथ है तो मुड़ जाती हैं, ऐसे पिचक जाती हैं। सो दैट इज़ द ओनली थिंग। लास्टली आई हैव दिस लिप चीक टिंट इन द शेड मरमेड। ये मैंने किसी एक यूट्यूब शॉर्ट में देखा था जिसमें दैट गर्ल वाज अप्लाइंग इट एंड इट वाज लुकिंग सो अमेजिंग ऑन हर लिप्स एंड आई वाज लाइक ओ वाओ, ये बहुत ही अमेजिंग लग रहा है एंड ऑलमोस्ट सिमिलर टू जो बेनेटिंट का एक टिंट था जो मेरे पास था अमायरा के लिए। एक छोटे छोटे सैम्पल्स मुझे मिले थे, वो एक बहुत ही प्यारा था। आई थिंक आई डोंट नो कौन सा प्ले टिंट था, वो कौन सा शेड था, उसके जैसा ये लग रहा था। देन आई वाज लाइक कि ओके लेट्स गेट इट। ये फॉर्मुलेशन में काफ़ी सारा मिक्सचर ऑफ ऑयल्स है जिसमें साफ्लावर है, कैस्टर है, पोमेग्रेनेट है, ग्रेप सीड है एंड विटामिन ई है एंड लास्ट में इसमें आपको पिगमेंट्स मिलेंगे जो कि ऑर्गेनिक पिगमेंट्स हैं। आई जस्ट लव दिस टिंट, मुझे बहुत अच्छा कलर लगा है। इट हैज़ वेरी नाइस बेबी पिंक कलर, बट जैसे आप इसको अप्लाई करते हो लिप्स पे एंड व्हेन यू जस्ट टैप इट विद योर फिंगर तो वो निकल जाता है, कलर वॉश ऑफ हो जाता है बहुत जल्दी। दो इट्स अ टिंट तो इसको एक स्टेन छोड़ना चाहिए लिप्स पे ताकि वो थोड़े लंबे टाइम तक रहे, ये बहुत जल्दी वॉश ऑफ हो जाता है। सो दैट्स द ओनली कॉन, बट अगर आप इसको चीक्स पे लगाते हो देन इट कैन स्टे। वेल लेट मी जस्ट शो यू अ लाइव एप्लीकेशन। दिस इज माई करंट सिचुएशन एंड नाउ इफ आई अप्लाई दिस तो यू सी ये बहुत ज़्यादा ऐसे पिगमेंटेड नहीं है, इट्स नॉट वेरी पिगमेंटेड। यू सी ये कि जब आप इसको अप्लाई करते हो ना, लाइक जब आप इसको निकालोगे एंड व्हेन यू अप्लाई इट लाइक दिस तो आपको दिखेगा ओ वाओ कितना प्यारा कलर है, पर जैसे आप उसको ब्लेंड इन कर दोगे ना तो ये गायब ही हो जाता है। लाइक अभी तो ऑब्वियसली मैंने दूसरी बार अप्लाई करा तो आपको हल्का सा टेंट दिख रहा है, बट क्वांटिटी आपको बहुत ज़्यादा लेनी पड़ेगी यहाँ पे, तब आपको दिख सकता है थोड़ा बहुत कलर। यू सी यू हैव टू जस्ट वर्क विद द क्वांटिटी, तो थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा लगेगी, अदरवाइज इट्स अ ब्यूटीफुल टिंट। आई लव द कलर, बट यही है कि थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा लेना और you see, but I won't prefer this one for my face because इसके अंदर काफ़ी सारे ऑयल्स एंड आई एम अ कॉमेडॉन प्रोन पर्सन, तो मुझे एक दो बार ना यहाँ पे एक्नेस का इशू हो गया था
दैट्स वाई मैंने इसको अपने फेस पे नहीं लगाया। एंड लिप्स पे तो मैंने आपको बता ही दिया कि बहुत ज़्यादा लंबे देर तक नहीं रहता है और स्टेन उतनी ज़्यादा अच्छी से नहीं रहती है आपके लिप्स पे, बहुत जल्दी वॉश ऑफ हो जाता है। सो दैट्स द ओनली इशू। अदर देन दैट इट्स अ ब्यूटीफुल वन। अगर आपका ड्राई स्किन है ना, देन आप चीक्स के लिए इसको ले सकते हो और लिप्स पे बार बार रीअप्लाई कर सकते हो, देन यू कैन गो फॉर दिस वन। सो या दैट वाज आवर लास्ट प्रोडक्ट एंड इट वॉज अ काइंड ऑफ मिक्स ऑफ एक्सपीरियंस विद दीज प्रोडक्ट दिस टाइम, बिकॉज जब ये इनिशियली नया नया ब्रांड आया था ना, तब इनकी फॉर्मुलेशंस बहुत अच्छी होती थी। उससे मैंने काफ़ी सारे इनके प्रोडक्ट्स ट्राई करे थे, बट धीरे धीरे आई डोंट नो, एक तो इनकी पैकेजिंग्स बार बार चेंज होती रही और वो फॉर्मुलेशंस भी चेंज होती गई। पहले इनका क्लेंजिंग बाम बहुत अच्छा हुआ करता था, इनकी एक सीका जेल आती थी वो बहुत अमेजिंग हुआ करती थी। देन देयर वाज अनदर प्रोडक्ट विच आई एब्सोल्युटली लव्ड, आई डोंट इवन रिमेंबर कौन सा था, लेकिन काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स इनके अच्छे थे। बट अभी धीरे धीरे आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड, कुछ एक चीज़ें अच्छी हैं कुछ एक नहीं। लाइक जो ये क्लेंजिंग बाम है इतना गंदा हो गया अब ये। पहले मैंने इनका वो प्रोपोलिस वाला ट्राई किया था, आई एब्सोल्युटली लव इट। वही सोच के मैंने ये मंगवाया, मैंने कहा चलो ठीक है ग्रीन टी वाला कुछ मंगाते हैं, बट बहुत ही भद्दी सी स्मेल है, इवन द मास्क आर नॉट दैट गुड। या इट वॉज अ काइंड ऑफ अ मिक्स काइंड ऑफ एक्सपीरियंस विद ऑल दीज प्रोडक्ट्स। आगे अभी कुछ और ट्राई करना है, आई रियली डोंट नो, बट हाँ कुछ ऐसा लगेगा मुझे इंटरेस्टिंग तो आई वुड लव टू, बट अभी के लिए तो आई एम डन विद द ब्रांड। सो या आई होप you found it helpful. If you do, don't forget to hit like, share, subscribe, press the bell button so you never miss any of my videos. Now I'm gonna see you in my next